Motormouth Show. The Motormouth Show. Let's do this. The Motormouth Show. क्या बात कर रहे हो? Motormouth Show. सच्ची? The Motormouth Show. अच्छा, एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है हमारी लाइफ में, और वो हर बच्चे के लाइफ में आता है कि जब हम ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो एक पॉइंट आता है जब हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, और तब पेरेंट्स के साथ झगड़े भी होते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ कि कभी पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं करना है, लाइक नहीं मुझे करना है? आई थिंक मैं हाँ ही बोलूँगी मतलब क्या ही सबके बोलूँ, साथ होता है ना ये? सबके साथ ही होता है। और वो एक रेबल वाला जोन आता था ना मिडिल में कि अरे ये अपना ही आपको बच्चा कुछ नहीं पता। जानवर कब बन गया अपना ही बच्चा मॉन्स्टर कब से बन गया। तो वो तो आया ही था, वो एक टीनेज जोन जो बीच में था। बट आई थिंक वो लोग भी यार प्रिपेयर्ड ही थे कि ये तो होने होगा। वाला है, ऐसा तो होने वाला है। उस टाइम पे नहीं समझ में आ रहा होता, हर चीज़ से चिढ़न होती है बिकॉज ऑब्वियसली गोइंग थ्रू प्यूबर्टी एंड ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग इन लाइफ। इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड, सो you yourself don't know what is happening. So I think they took it really nicely. I was a little bit of a rebel in the middle, but they took it really nicely, and that teenage zone is behind me, is past me. I'm glad I've understood now, and I feel like I've connected to them more like over the years. Like I've become more close to them now since I was in my teenage. I was very शरारती बच्चा। आई फील कई बार ना ऐसा होता है कि जब हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं आपको नहीं पता ये चीज़ गलत है, ये है वो है, एंड लेटर ऑन जब हमें लगता है कि नहीं यार पेरेंट्स सही कह रहे थे, Right. तब ऐसे टन सिर पे बचता है और पता चलता है ब्रो यू वर रॉन्ग, Exactly. यू वर राइट, I knew this was coming. मतलब मम्मी तो बोली बेटा ये होने वाला था। ये तो होना ही था, पता और था। करो तुम। Exactly. And इतना मजे से बोलते ना वो। हाँ, उनको बड़े चस्के आ आते जाओ हैं बेटा ऐसा। पता ही था होने वाला है। आ जाओ हाँ, बट आई सीन यू ग्रो अवनीत, है ना? यू डिड अलादीन एंड बहुत सारी लड़कियों की इंस्पिरेशन बन गई। यू वर डूइंग सोशल मीडिया एट द टाइम व्हेन सोशल मीडिया वाज नॉट व्हाट इट इज टुडे, है ना? जैसे आपने जो पहना है यस। उसके बारे में पोस्ट करना, कपड़े, ये टैग, वो टैग, स्टाइल में दिस दैट, nobody was doing it at that time. Right. How did you know that this is going to be big at that time, or you just did not know you were doing what you felt like? Yeah, I was doing Aladdin that time, but honestly speaking, I did not know the power of social media at that time. First of all, I was like 15, 16, ठीक है? Right. तो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। I was just having fun, and I was just being myself. Like चीज़ें आ रही थी या जो भी हो रहा था, I just kept going and I tried creating more stuff and I liked it. I enjoyed it. उस टाइम पे ये नहीं समझ में आ रहा था कि this will convert into a really big brand और मुझे अभी से ही अपने आप को इस जोन में नहीं। हाँ, उस time पे ऐसा कुछ था ही नहीं ना? Yeah, it just came with the flow, I think. और उस टाइम पे see, I enjoy fashion. I love fashion. और उस टाइम पे दिखना शुरू हो गया था मुझ में कि हाँ शायद because I used to do a lot of like styling and all, Yeah. to style myself, and I used to enjoy that. So I think I enjoyed doing it, and I never thought of it in the bigger picture that will be so inspirational or something like that. And being Yasmin also, I think gave so many girls inspiration. Like that was the period in my life, literally girls, छोटे बच्चे used to come to me और मेरे को बोलते थे मेरे को आपके जैसा warrior princess बनना है। Wow. And till date, I mean, there are so many girls that come to me and यही बोलती हैं कि मुझे आपके जैसे warrior princess बनना है, and that feels so cute. I'm like हाँ मतलब warrior princess बनना है बच्चे कोई नहीं बन जाना। there are so many struggles in your life, and I think Yasmin का character taught me a lot from that. So obviously I'll not be a warrior princess going on a horse and fighting. Yeah. That will not happen, but the motivation and that zid again in her is what taught me a lot from that character. Okay. So Yasmin has been an inspiration to a lot Yeah. of girls. Yeah. But who is the inspiration to Yasmin? Inspiration to Yasmin. मतलब आपकी इंस्पिरेशन कौन है? See, my mother will always come the first, and I think like my mother only. I think she'll be the biggest inspiration. मैंने ये ड्रीम भी नहीं किया था जब उन्होंने ऑलरेडी कर लिया था, तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनसे बड़ी मतलब फीमेल इंस्पिरेशन मेरे लिए कभी नहीं रहेगी लाइफ में। So sweet.
एंड टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिशन दैट यू टुक, एक चाइल्ड एक्टर होना, Yeah. एंड वी ऑल नो कि कई बार ना लोगों के मन में ये बैठ जाता है कि यार शी इज़ अ चाइल्ड एक्टर, शी इज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट, एंड वहाँ से सीधा जंप एंड बॉलीवुड, OTT, म्यूजिक वीडियोस, कैसे हुआ ये ट्रांजिशन? वॉज इट डिफिकल्ट फॉर यू? वर देयर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस और डिड इट कम लाइक वेरी इजी टू यू? See, I don't think it's easy for anyone actually. मतलब जितने भी अभी चाइल्ड एक्टर्स रहे हैं पहले, और यार सब बड़े हो गए हैं अब, हाँ. बट हम लोगों ने ऑब्वियसली उनको ऐसे देखा है बचपन से स्क्रीन पे कि हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं कि भाई तू ग्रो अप हो चुकी है, तू हो चुका है. तो वही बहुत बड़ा इशू था. एग्जैक्टली. और उस इशू को एकदम से आप ना ओवरकम नहीं कर सकते हो. मेरे को बहुत टाइम लगा. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज नॉट डूइंग अलादीन, आई टुक लाइक year and a half's break when I got Tiku at Sheru then. Oh. या तो 1 साल मैंने वेट किया है. मैंने कोई काम नहीं किया उस कुछ टाइम भी पे. नहीं किया कुछ उस भी time नहीं पे. किया मैंने उस टाइम पे. मैं छोटा छोटा तो सभी करते रहते हैं कुछ ना कुछ, बट बिग मेजर लीप इन माई करियर आई डिड नॉट टेक. आई हैड टू वेट आउट दैट 1 year बिकॉज आई न्यू कि यार थोड़ा अभी तू रुकेगी ना तो एक जो फिर वो तेको जो एक चीज़ जो चाहिए टू टेक दैट लीप वो फिर मिलेगा तेको. एंड वॉज इट योर डिसीजन और पेरेंट्स? It was a decision. It was a collaborative decision on both of us. But they also thought, and the people like my managers and all also thought कि maybe this is the right thing to do. And I felt like कि वो जो time था ना वो बड़ा ही ज़रूरी था to give it to myself also, because so many things were happening. I was doing one thing and then jumping to another, then one thing was happening. I was never free. Like even in my school years, I remember I used to shuffle between my shoot days and like my school days. I used to go for my exam and then फिर मैं आके अलादीन का शूट करती थी. फिर मैं एग्ज़ाम देती थी, फिर शूट करती थी. तो ये बहुत बैक एंड फोर्थ हो रहा था. तो एक वो जो टाइम था खुद को देना बड़ा ज़रूरी था कि थोड़ी रेस्ट कर ले और थोड़ा अपने आप को और सुधार. हो सकता है कि कुछ और बड़ा है तेरे किस्मत में लिखा. तो बस वो थोड़ा सा मैंने वेट किया और फिर then I auditioned for Tiku at Sheru and that's when I